Hello students. Today we are going to start with the last unit of of our syllabus, that is unit 6, enterprise resource planning. Okay, so this is the last unit of our syllabus. In this way we will complete our theory syllabus by completing this chapter, and we will start with the practical. Okay, so this is the last unit, that is unit 6, ERP. What is ERP? ERP is nothing but it is the enterprise resource planning. Now in this chapter we are going to study what is exactly enterprise, how the resource planning of the enterprise is done. That we are going to study in this chapter. So the first point we are going to discuss is the introduction. Okay, in the today's competitive world, one has to manage the future of enterprise more clearly. Managing the future means managing the information. A large enterprise may generate huge amount of data such as the financial data, customer details, purchase details, employee details, etc. Only the organization that makes the best possible use of information can succeed. In this age of information explosion, it is very difficult to manage the huge information by people alone. अभी इसमें ERP, what is the use of ERP? In ERP it is shown that it is in the today's competitive world, it is very difficult to manage for a particular it is very difficult for us to manage the future of our enterprise more clearly. Managing future means what? How we will manage the different types of information, how we will keep the future of the information secure. That way it is very difficult, because nowadays the enterprise contains huge amount of data. They generate the huge amount of data, so it is very difficult to protect that huge amount of data. That data can be in any form, that it can be in the either the financial detail of a particular user, or the customer detail of a particular businesses, or the purchase detail, or the employee data. But it is very difficult to maintain this huge amount of data in an enterprise nowadays. So now what does the organization does? The organization sees what can be done, the possible ways to make the information use of information properly and to get succeeded. So in this way, to manage this difficulties, they have used information by the people alone. So now it is not possible for the people alone to manage this huge information. So this ERP has been introduced. In ERP there is the use of the information technology along with the different technologies that are used for the planning and organizing of a particular resource for the information enterprise. Hence in this ERP there is a different types of packages created which helps them to manage the managemental problem or the solution to the information management problems. This ERP has the different types of packages which provides the different types of solutions to the packaging problems which have been generated. So now first, before starting this, we will see what is an enterprise. एंटरप्राइज मतलब क्या रहता है कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यूज करके उनका जो भी पर्टिकुलर एम रहेगा वो एम या फिर कॉमन गोल को रीच करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल एंड ग्रुप ऑफ द रिसोर्सेज टुगेदर आके पर्टिकुलर रिसोर्स गोल अचीव करना है, तो उसे क्या कहा जाता है? एंटरप्राइज कहा जाता है. एंटरप्राइज एक सिंगल एंटिटी है, but it is divided into different units based on the operation. Enterprise ये एक ही यूनिट है, पर उसको डिफरेंट ऑपरेशंस में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड इन ईच. तो ऑपरेशंस के इसमें वो किस में डिवाइड किए जाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं. फिर ये जो एंटरप्राइज है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशंस रहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशंस मतलब कौन से? एंटरप्राइज में प्लानिंग का अलग सेशन रहता है, फिर सेल्स रहता है, परचेज है, फाइनेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन है. ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस रहते हैं दैट आर क्रिएटेड इन योर एंटरप्राइज. तो ईच सेशन को या ईच डिपार्टमेंट को उनकी सम ऑफ द ड्यूटीज़ दी जाती है या फिर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग टू उनको क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है. और जो भी ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर एंटरप्राइज ने सेट किया है वो ऑब्जेक्टिव उनको क्या करना पड़ता है? वहाँ पे अचीव करना है.
तो यहाँ पे एंटरप्राइज मतलब क्या समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कंपनी लो, दैट इज अ एंटरप्राइज, उसमें नंबर ऑफ पीपल्स वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, और वो जो गोल अचीव करना है वो गोल अचीव कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है कि वो कंपनी एक ही यूनिट है, पर उसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट मेंबर्स है, तो उसको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किए गए, और पर्टिकुलर मेंबर को उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वो वर्क अलोकेट किया जाता है। दैट इज प्रोजेक्ट एक ही है, पर उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट किए जाते हैं, और ईच यूज़र को या फिर ग्रुप ऑफ यूज़र को वो मॉड्यूल पे वर्क करने के लिए असाइन किया जाता है। वैसे ही एंटरप्राइज में क्या किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू द सिंगल एंटिटी है, पर उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना है, तो उसके लिए वो डिफरेंट यूनिट्स किए जाते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट को उनकी ड्यूटीज़ दी जाती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है कि उनको वो ड्यूटीज़ और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्कआउट करके जो भी कंपनी का या एंटरप्राइज का मोटो रहेगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा वो उनको अचीव करना है। सो दिस इज़ व्हाट एंटरप्राइज स्टैंड्स फॉर। भी यहाँ पे देखो, ये डायग्रामेटिकली आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज एंटरप्राइज। ओके, यहाँ पे देखो, ग्रुप ऑफ पीपल्स आर देन, रिसोर्सेज इज अवेलेबल एंड देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। तो मेन उनका गोल क्या है कि उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या फिर उनको ये क्रिएट करना है, तो उसके लिए उनको क्या रिसोर्सेज लगेंगे, गाड़ी लगेगी, ये लगेगा, दिस आर द डिफरेंट रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर देम, and these are the group of people. Some people are expert in building the wall, some people are expert in creating the outline for that, some are clever in the computerization work. That is, different groups are created. Entity is one, but depending upon the operation performed by each of them, they are divided. So this is called an enterprise. So have you all understood what is an enterprise? Now next, what is resource? Now what is resource? There are different types of resources which are used in an enterprise, that is like material, money, machine, man. These are all the different types of resources. Resources मतलब क्या होता है कि एंटरप्राइज में क्या क्या लगने वाला है, मटेरियल लगता है तो कौन से टाइप का मटेरियल चाहिए, कौन से पर्सन चाहिए उसमें इन्वॉल्व करके, फिर हमें रिसोर्स मतलब पैसे भी चाहिए। जो भी एंटरप्राइज है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स मनी रहता है, मटेरियल रहता है। मनी रहा तो फिर मशीन बाय कर सकते हैं, मटेरियल बाय कर सकते हैं, एंड इफ़ मशीन है, मटेरियल है, मनी है, पर अगर आदमी नहीं रहेंगे तो वो पर्टिकुलर वर्कआउट नहीं कर सकते, इसलिए मेन्स आर ऑल्सो नेसेसरी। सो एंटरप्राइज में सबसे मेन रिसोर्स कौन रहता है? पीपल, दैट आर पर्सन हु आर वर्किंग, सेकेंड इज द मनी, third is the material, and fourth is the machine. So these are the main important types of resources in your enterprise. फिर उसके बाद इसमें क्या रहता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए। डिफरेंट डिपार्टमेंट में इतनी एक्यूरेसी रहती है कि पर्टिकुलर पर्सन का जो भी वर्क दिया गया है वो वर्क वो पर्टिकुलर टाइम में ही क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। इट मीन्स दैट द वर्क डन बाय देम इज सो एक्यूरेट एंड सो पंक्चुअल दैट इट इज डन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फॉर द पर्टिकुलर कंसर्न्ड पीपल। So this is what about the resource. Have you all understood what is enterprise, what is resource? Now we will see what is planning. हमारे चैप्टर का नाम ही है ERP. E for enterprise, R for resource and P for planning. सो नाउ वी विल सी व्हाट इज प्लानिंग। अभी प्लानिंग में क्या रहता है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का हम इम्प्रूव कैसे करें, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करके पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। तो एक्शन हम सिलेक्ट कैसे करें कि हमारी कंपनी को या फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट हो, ये सब हम क्या करते हैं, प्लानिंग में देखते हैं। तो प्लानिंग जस्ट फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, हमें कौन से ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, उसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, कौन से टाइप ऑफ एक्शन परफॉर्म करनी है, वो सब हम किस में देखते हैं, हमारे प्लानिंग में। सो दिस इज व्हाट ERP स्टैंड्स फॉर। समझ में आया व्हाट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। Now next we will move forward and we will study the concept of enterprise resource planning. So now what is the concept of this ERP? What is this ERP generally? What is the use of this ERP? How this ERP is work, that we will see. In some enterprises, different departments function independently. So the information that is produced by each department may be available only to the top management of the department
and it is not available to other departments. So there is no communication between different sections of an enterprise. The ERP system often integrates of accounts payable, stock control system, order monitoring system and customers database into one system. अभी ये ERP में क्या किया जाता है, तो इसमें क्या रहता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस और अकॉर्डिंग टू द speciality of that particular person or their specialization. They are divided into different departments and each department work independently from other department. No two departments are dependent on each other. तो इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है बाय अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, that is only shared with the top management people. That is not shared with other department people, but that is only shared with the top person. जो top पे रहता है उसके साथ ही शेयर किया जाता है, not with other peoples of the other department. क्यों? क्योंकि उनके बीच में कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं रहता है, क्योंकि उनका सेक्शन क्या रहता है, टोटली डिफरेंट रहता है एंटरप्राइज का. उनका सेक्शन क्या रहता है, टोटली डिफरेंट रहता है परफॉर्म करने के लिए. इसलिए उसमें क्या रहता है कि जो ERP सॉफ्टवेयर है इसमें क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट. फिर वो डिपार्टमेंट का इंटीग्रेशन वो एक डेटाबेस सिस्टम में किया जाता है. फिर क्या क्या इंटीग्रेट किया जाता है कि अकाउंट्स पेएबल का डिफरेंट डिपार्टमेंट रहेगा, स्टॉक का डिफरेंट रहेगा, फिर ऑर्डरिंग का डिफरेंट रहेगा, ऑर्डर मॉनिटरिंग का रहेगा, तो उसको कस्टमर का डेटाबेस रहेगा. तो वो पूरा सबको मिला के एक कॉमन सिस्टम क्रिएट करना है. दैट इज द मेन मोटो ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. तो ERP जनरली ये सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है, ये सबको इंटीग्रेट किया जाता है इनटू वन सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज नेम्ड एज ERP. So here you all can see this is a figure in which there is an enterprise with little communication between the departments. So here is the communication. See, different departments are there. प्रोडक्शन प्लानिंग का डिफरेंट डिपार्टमेंट है, फिनेंस का डिफरेंट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का डिफरेंट है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंट है. ईच डिपार्टमेंट हैज़ देयर ओन वर्क अलोकेटेड एंड दे कम्युनिकेट विल ओनली विद द टॉप, not with the other departments, because there is no interaction of the work between the two departments. So for better benefits or efficiency, each department must know what the other department is doing. So other department क्या कर रहा है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रहने के लिए उनके साथ में बीच में क्या किया जाता है, एंटरप्राइज का लिटिल कम्युनिकेशन इज डन बिटवीन द different departments, so then there will be efficiency in the work which is done. So enterprise considers a system with all the subsystems used in it. ओके तो एंटरप्राइज में क्या रहता है कि एक सिस्टम जैसा कंसिडर किया है जिसमें उनके जो डिपार्टमेंट्स है वो एज ए सब सिस्टम वहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं. तो इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर एंटरप्राइज की रहेगी वो उसमें क्या किया जाता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और वो अवेलेबल किया जाता है कि एवरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट कैन यूज इट. So different types of department can use this type of information. This is about the you all can see here is a picture with a enterprise with the central database. Here is my central database and these are the different departments which are sharing their resources or whatever the work is performed by them, they are sharing to the central database. So the different database departments which are included is again the production planning, the HR, the production, the sales, distribution and the marketing. So these are the different departments which are shared over here. Have you all got it? Now conceptually, ERP replaces the old stand-alone computer system in each area of an enterprise such as the finance, human resource, manufacturing, sales, etc. तो इसमें क्या रहता है कि जो हमारी ओल्ड स्टैंड कंप्यूटर के सिस्टम की गई है उसमें दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज सच एज फिनेंस रहेगा, ह्यूमन रिसोर्सिंग रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स है. तो इसको क्या किया है, उन्होंने रिप्लेस किया है बाय यूजिंग ERP. तो इसमें क्या रहता है कि एक सिंगल सॉफ्टवेयर है, विद दैट सिंगल सॉफ्टवेयर डिफरेंट फंक्शनल मॉड्यूल्स परफॉर्म करने के लिए फैसिलिट किए गए हैं. तो एम्प्लॉय को क्या होता है कि एम्प्लॉय कौन से भी डिपार्टमेंट का रहने दो, उसको जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है
रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वो उसको असाइन की जाती है। इन एडिशन उसको ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि अक्रॉस द डिपार्टमेंट, मतलब खुद के डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन उसको क्या की जाती है, अवेलेबल की जाती है। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ईआरपी यूज करके वो क्या देख सकता है कि सेल्स ऑर्डर कितनी शिफ्ट हुई है, वेयर हाउस में से सेल्स ऑर्डर कितनी गई है, कितनी बाकी है, कितनों का पेमेंट आना है, फर्दर पेमेंट्स किसका रहा है, ये सब वो क्या कर सकता है, फिनेंस डिपार्टमेंट चेकआउट कर सकता है। So this were about the basic concept of ERP. Now we will see what are the different functional units of ERP. The first functional unit of ERP is the resources which are available in the enterprise that is utilized very effectively. So there is effective utilization of the resource which is available in your enterprise. So the responsibility of the management is to plan the resources, and with the help of this resources they will the system will make help the management in making the resources more productive and efficient. For that the ERP provides us the different types of modules or different types of subunits which are required for the packaging of your ERP. So this is about the functional unit of ERP. Functional unit of ERP में क्या किया जाता है कि जो भी resources available है enterprise में वो रिसोर्सेस उन्होंने क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए इफेक्टिवली। तो ये हर एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो रिसोर्सेस उन्होंने प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। तो ईआरपी सिस्टम हमें क्या करता है कि ये जो मैनेजमेंट के लिए हम प्रोसेस करते हैं तो ये प्रोसेस कैसे प्रोडक्टिव हो या कैसे एफिशिएंट हो ये करने के लिए हमें हेल्प की जाती है बाय द ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो ईआरपी पैकेज में क्या रहता है, तो मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स रहते हैं और वो मॉड्यूल्स के सब यूनिट्स भी उसमें क्या रहता है, डिफाइन किया जाता है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल यूनिट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय योर ईआरपी। अगेन द फंक्शनल यूनिट्स आर सेम। फिनेंशियल मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, फिर मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एचआर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल यूनिट्स है जो हमारे ईआरपी में हमें अवेलेबल किया जाता है। नाउ वी विल सी ईच मॉड्यूल इन डिटेल। द फर्स्ट मॉड्यूल इज द फिनेंशियल मॉड्यूल। अभी फिनेंशियल मॉड्यूल में क्या किया जाता है कि जो भी ईआरपी सॉफ्टवेयर के जो कोर मॉड्यूल्स है उसमें से एक मॉड्यूल आपका कौन सा है, फिनेंशियल मॉड्यूल्स है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी फिनेंशियल डेटा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, तो वेरियस डिपार्टमेंट्स का जो फिनेंशियल डेटा है वो गैदर किया जाता है और उसमें से वैल्यूएबल फिनेंशियल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है बाय यूजिंग दिस फिनेंशियल मॉड्यूल्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो भी फंक्शनल ये है फिनेंशियल डेटा है वो टुगेदर कलेक्ट किया जाता है और उसका वैल्यूएबल रिपोर्ट जनरेट करने का काम कौन करता है, तुम्हारा फिनेंशियल मॉड्यूल। फिर फिनेंशियल मॉड्यूल्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट रहेगी या फिर जनरल लेजर रहता है, ट्रायल बैलेंस रहता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है फॉर अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज, वो सब उसमें क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है। ये मॉड्यूल में नॉट ओनली दिस बट उसमें आपकी फिनेंशियल अकाउंटिंग का भी यूज़ किया जाता है। आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो वो भी देखा जाता है। फिर उसके लिए वो एंटरप्राइज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग है क्या नहीं वो भी चेक की जाती है बाय योर फिनेंशियल मॉडल। द सेकेंड इज द मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में क्या किया जाता है कि बिजनेस करने के लिए जो रूल्स है बिजनेस के, तो वो बिजनेस के रूल्स मैनेज करना है और पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में वो रूल्स फॉलो अप करना चाहिए। तो इसमें ईआरपी ये मॉड्यूल क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल, तो वो क्या करता है कि जो टेक्नोलॉजी है और जो बिजनेस की प्रोसेस है वो दोनों को एक साथ करके उसका इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और वो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए वो फॉलो अप किया जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि उनके पास फ्रीडम रहता है कि उनको क्या चेंज करना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है, कौन सी मेथड्स मैन्युफैक्चरिंग की यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, कैसी यूज़ करनी है, ये सब किसके पास रहता है, डिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल के पास ये सब डिफाइंड रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं।
द नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। अभी प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में क्या किया जाता है कि ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेस उनके पास अवेलेबल है उसका ऑप्टिमाइज यूज़ करना है, और ऑप्टिमाइज यूज़ करके वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए प्रोडक्शन को कैसा यूज़ किया जाएगा, कैसा यूटिलाइज करना है, ये उसमें दिया जाता है। तो प्लानिंग मॉड्यूल में क्या किया, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में क्या किया जाता है कि जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो मटेरियल पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। वो मटेरियल आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए कौन से ऑप्टिमम रिसोर्सेस नेसेसरी है, वो ऑप्टिमल रिसोर्सेस वहाँ पे देखे जाते हैं, और वो ऑप्टिमल रिसोर्सेस बाय यूजिंग द सेल फोरकास्टिंग या फिर डेटा फोरकास्टिंग करके वो रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, और सेल्स डेटा के साथ कम्युनिकेशन करके ऑप्टिमल यूज़ ऑफ पर्टिकुलर रिसोर्स कैसे करना है वो किया जाता है। द नेक्स्ट मॉड्यूल इज द HR मॉड्यूल। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ HR मॉड्यूल? HR मॉड्यूल इज व्हाट अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें क्या रहता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी रिलेटेड टू द ह्यूमन, दैट इज स्टोरी इन द HR मॉड्यूल। अभी उसमें कौन से टाइप ऑफ रिसोर्स रहते हैं, क्या मेंटेन किया जाता है HR मॉड्यूल में? तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का पूरा डेटाबेस रहता है, जैसे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, उसमें उसकी सैलरी कितनी है, उसका अटेंडेंस कितना है, उसका प्रमोशन हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, पर्टिकुलर एंटरप्राइज पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल जो डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसको मॉनिटर करने का काम किसके पास रहता है? हमारे ह्यूमन रिसोर्स के पास रहता है। तो ह्यूमन रिसोर्स ये सब मॉड्यूल्स को मॉड्यूल में क्या करता है कि मेंटेन करता है कि एम्प्लॉय की डिटेल्स में कैसे मेंटेन कर सकती हूँ। तो डेटाबेस में पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी, उसके सैलरी रिलेटेड, उसका प्रमोशन परफॉर्मेंस, वो सब उसके मॉड्यूल में राइट किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेंटरी कंट्रोल मॉड्यूल। इन्वेंटरी कंट्रोल मॉड्यूल में क्या किया जाता है कि ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द लेवल ऑफ स्टॉक, कि हमारे पास कितना स्टॉक हमारे वेयर हाउस में है, कितना स्टॉक हमें और बनाना है, ये इसका सब मेंटेनिंग ऑफ दैट रिकॉर्ड किस में किया जाता है? इन्वेंटरी कंट्रोल में किया जाता है। उसमें यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है कि जो भी हमारा इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट है उसका टारगेट सेट किया जाता है पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के लिए, कि पर्टिकुलर स्टॉक आइटम को कितना लगता है इन अ ईयर, दैट स्टॉक आइटम इन अ मंथ कितना सेल किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका टारगेट सेट किया जाता है, वो इन्वेंटरी कंट्रोल मॉड्यूल में किया जाता है। परचेसिंग मॉड्यूल में क्या किया जाता है? तो पर्टिकुलर यूज़र या फिर पर्टिकुलर कस्टमर ने जो भी परचेस किया है तो फिर उसकी ऑर्डर जनरेट करना है, उसको ऑर्डर जनरेट करके बिलिंग क्रिएट करना है, तो ये किस में किया जाता है? परचेस मॉड्यूल में। तो परचेस मॉडलिंग हमें हेल्प करता है फॉर जनरेटिंग ऑफ योर परचेस ऑर्डर एंड बिलिंग, परचेस बिलिंग एंड ऑल दैट इज डन इन द परचेसिंग मॉड्यूल। तो ये परचेसिंग मॉड्यूल किसके साथ क्लोजली कनेक्टेड रहेगा, मतलब कौन से मॉड्यूल के साथ इसका लिटिल बिट कम्युनिकेशन रहेगा? फिनेंस मॉड्यूल एंड इन्वेंटरी कंट्रोल मॉड्यूल, कि कितना स्टॉक मेरे पास है, किसके कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे बाकी है, तो ये सब किसके साथ, कौन से मॉड्यूल के साथ उनका कॉम्बिनेशन रहेगा या फिर लिटिल कम्युनिकेशन रहेगा बिटवीन द इन्वेंटरी कंट्रोल मॉड्यूल एंड द फिनेंस मॉड्यूल। ओके, नेक्स्ट इज द मार्केटिंग मॉड्यूल। अभी मार्केटिंग मॉड्यूल में क्या किया जाता है? तो मार्केटिंग मॉड्यूल में मॉनिटर किया जाता है और या फिर ट्रैकिंग ऑफ कस्टमर्स नीड, कस्टमर की नीड्स ट्रैक की जाती है, सो दैट वो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर सकते हैं और जो भी क्रेडिट की रिस्क है वो एलिमिनेट करने में हेल्प आउट की जाती है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स में क्या किया जाता है कि जो भी ट्रैकिंग इंक्वायरीज है ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर, उसके पर्टिकुलर ऑर्डर के रिप्लेसमेंट में, ऑर्डर के डिस्पैच में या फिर इनवॉइस में वो देखा जाता है और उसको इंटीग्रेट किए करके ई कॉमर्स के वेबसाइट में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे वो सेल एक्सपोज किया जाता है। दैट इज मॉनिटरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज और प्लेसमेंट, ऑर्डर शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड इनवॉइसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, that is all done by the sales and distribution module. And the last module is the quality management module. Quality management module में क्या किया जाता है कि it helps you to maintain मैनेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी फॉर योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आपके पर्टिकुलर क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की कैसी है, उसका वो पर्टिकुलर क्वालिटी का प्लानिंग करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है, उसको कंट्रोल करना है,
ये सब काम किस में किया जाता है, क्वालिटी रिलेटेड जो भी वर्क है वो क्वालिटी मैनेजमेंट करता है कि ये मॉड्यूल पर्टिकुलर फंक्शंस फुलफिल होना चाहिए यूज़र के. फॉर दैट दे लुक आफ्टर द क्वालिटी प्लानिंग, they look after the quality inspections, and they look after the quality control. So these are the different modules which are used in the which are used in our ERP. So this were the 9 different models which are used as a functional unit of our ERP. Which were the 9? That was financial model, manufacturing module, production planning module, HR module, inventory control module, purchasing module, marketing module, sales and distribution module, and last was the quality management module. So in the next lecture we will see what is ERP and what are the different technologies which are related to the ERP. Thank you.